हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 26 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको एंड तक बने रहना है और एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज, in response to the Pahalgam terror attack that killed 26 people, including a foreign national, the Indian government has implemented a 5-point action plan targeting Pakistan. Key measures include the suspension of the Indus Water Treaty, closure of the Atari-Wagah border, cancellation of the SARC visa exemption scheme for Pakistani nationals, expulsion of Pakistani military advisors, and a reduction in diplomatic staff at the Indian High Commission in Islamabad. तो भाई पहलगाम टेरर अटैक जिसमें कि 26 लोग मारे गए, उसमें एक विदेशी भी शामिल थे। तो उसके रिस्पॉन्ड में अब इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए 5-पॉइंट एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें इंदूज वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, अटारी वाघा बॉर्डर को क्लोज करना, सार्क वीजा एक्सटेंशन स्कीम जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए होते थे उनका कैंसलेशन, पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर्स का निष्कासन, और इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में जो डिप्लोमेटिक स्टाफ थे उसमें कटौती करना शामिल है। ओके, नेक्स्ट। Klaus Schwab, the 87-year-old founder of the World Economic Forum, has resigned as chairman after leading the institution since 1971. Known as the face of the Davos Summit, Schwab's departure on April 21st, 2025 marks the end of an era as WF faces criticism of elitism, a turn of workplace issues, and a broader globalization backlash. Peter Brabeck Litmath has taken over as interim chair. तो भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कुछ इंटरनल इश्यूज की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन एंड फाउंडर क्लास स्वाब ने अब रिजाइन कर दिया है जहां ये 1971 से लीड कर रहे थे। ओके, और उनकी जगह पर पीटर ब्राब्रेक लेटमैथ को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया। ओके, नेक्स्ट। Simlipal, a rich ecological region in Odisha, was officially declared the 107th National Park of India and second in Odisha on April 24, 2025, covering 845.7 square kilometer across 11 forest ranges. The new status ensures stronger protection laws, more funding, and aligns with the vision of Viksit Odisha and Viksit Bharat, as noted by CM Mohan Charan Manjhi. तो भाई उड़ीसा के रिच सिमलीपाल जो कि रिच इकोलॉजिकल रीजन है, यहाँ पर उसे भारत का 107वां नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। यह 11 फॉरेस्ट रेंज में लगभग 845.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके, और हाँ, यह विकसित उड़ीसा और विकसित भारत का ही एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट। The Reserve Bank of India cancelled the license of Ajanta Urban Cooperative Bank, Maryadit, Aurangabad, effective April 22nd, 2025 due to inadequate capital, poor earnings, and its inability to safeguard depositors' interests. The Registrar of Cooperative Societies has been directed to initiate liquidation with depositor protection insured under the DICGC scheme, offering up to 5 lakh per depositor, covering 91.55% of the bank's depositors. तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस को इसके इनएडिक्वेट कैपिटल, पुअर अर्निंग्स और डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को सुरक्षित नहीं रखने की वजह से इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जो कि 22 अप्रैल से ही इफेक्टिव हो गया है। वही रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिशा निर्देश जारी किया गया है लिक्विडेशन के इनिशिएशन के लिए, और यह लिक्विडेशन जो है DICGC स्कीम के अंतर्गत होगा, जिसमें कि हर डिपॉजिटर को 5 लाख इंश्योर किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट।
The Reserve Bank of India has mandated all banks to migrate their web domains to the new .bank.in domain by October 31st, 2025 to enhance cyber security and reduce fraud in digital banking. The migration aims to address threats like phishing attacks and increase trust in digital banking services. The Institute for Development and Research in Banking Technology will serve as the exclusive registrar for the new domain, while the National Internet Exchange of India and the Ministry of Electronics and Information Technology will support the initiative. तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बनाने और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड को कम करने के लिए सारे बैंकों के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक नए वेब डोमेन को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी कर दिया है, और ये नया वेब डोमेन जो होगा .bank.in होगा। ओके, इसका उद्देश्य थ्रेट्स जैसे कि फिशिंग अटैक्स को कम करना और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज में ट्रस्ट को बढ़ाना है। ओके, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी इस नए डोमेन के एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार होंगे। वही नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करेंगे। ओके, आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। ओके, नेक्स्ट, Dream Technology, a leading Chinese smart home appliance brand, has appointed Bollywood actress Kriti Sanon as its first ever Indian brand ambassador, marking a key step in expanding its Indian market presence. Founded in 2017, Dream is known for innovative products like robotic vacuum cleaners, cordless stick vacuums, and hair styling tools, emphasizing hair-driven smart living and user convenience. तो भाई ड्रीम टेक्नोलॉजी जो कि चाइना की एक स्मार्ट होम अप्लायंस ब्रांड है, उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिससे वो इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस पहुंच को एक्सपेंड करेंगे। ओके, ड्रीम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह कंपनी 2017 में बनी थी और यह अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स, कॉर्डलेस स्टिक वैक्यूम्स एंड हेयर स्टाइलिंग टूल्स के लिए जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट, Kumar Mangalam Birla, chairman of the Aditya Birla Group and Padma Bhushan awardee, will receive the prestigious Lata Dinanath Mangeshkar Award 2024 on April 24th in Mumbai, recognizing his visionary leadership and contribution to India's economic growth. The award, presented by RSS Chief Mohan Bhagwat, coincides with the 83rd Memorial Day of Pandit Dinanath Mangeshkar, organized by Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishthan. तो भाई 83वें मेमोरियल डे ऑफ पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जिसे कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने ऑर्गेनाइज किया था, वहां पर कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन और पद्म भूषण अवार्डी भी है, उनको यह प्रेस्टिजियस सम्मान लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ओके, यह अवार्ड उनको विजनरी लीडरशिप और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। ओके, यह अवार्ड उनको आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने प्रेजेंट किया। ओके, नेक्स्ट, World Malaria Day, observed on 25th April every year, raises awareness about malaria, a deadly yet preventable disease. In 2023, there were 263 million cases and nearly 6 lakh deaths globally, primarily in tropical and low-income regions. The theme for 2025, Malaria Ends With Us, Reinvest, Reimagine, Reignite, calls for renewed efforts in prevention, treatment and innovation. तो भाई 25 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करते हैं, और यह दिन हम लोग मलेरिया, जो कि एक डेडली डिजीज है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह डे ऑब्जर्व करते हैं। 2023 में 263 मिलियन केसेस मलेरिया के मिले, जिसमें कि 6 लाख ग्लोबली डेथ हुई थी, जिसमें मेनली ट्रॉपिकल एंड लो इनकम रीजन्स में हुई थी। वही 2025 में इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन,
रीइग्नाइट। ओके, तो ये थे आज के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको अपने से स्टडी करने हैं। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।